Assalamualaikum students. Hope you are fine and you are preparing well for your paper 2. There is going to be tomorrow, and there is another video after the initial two videos. It covers again some topics that are important in paper 2, and we'll go through some past paper questions, right? So this will help you preparing or finalizing your paper for tomorrow, right? Okay, let's start. I'm going to share my screen. All right. We have a paper. I will have a paper that was sent by the students. Let's go through this. Actually, reminding you that we cannot do all the questions in limited time. Rather, uh, we have to discuss the logic behind attempting the questions. Right. For example, this is a question number 6 in a paper. Uh, it has certain requirements. We have to look for the solution to this problem and how will we deal with these requirements. Okay, इसको हम ये करेंगे. Uh, at first, it seems to be time consuming, and it is. But once you learn the logic behind this question and every other question, then it becomes easier and less time taking for you when you will attempt the paper in the examination hall. Okay? अब स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि ये हम इतनी देर में हमें तो आधा घंटा लगा क्वेश्चन करने में, हम एग्जाम में कैसे 15-20 मिनट में ये पार्ट करेंगे. एक्चुअली आपको लॉजिक आ जाता है, फिर आप उसको जल्दी कर लेते हैं. ठीक है, तो ट्राई टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रेंज. कोई किसी में आपका टेक्स्ट फाइल है, किसी में फंक्शंस और प्रोसीजर्स हैं, किसी में एरे है, किसी में बिल्ट इन फंक्शंस हैं, किसी में लूप्स हैं. So try to do a variety of questions so that you can get maximum exposure. Okay? Now, what this question requires, members of a family use the same laptop computer. Each family member has their own password. To be valid, now this scenario is of no importance. Okay? यहाँ से आपकी requirements है. To be valid, a password must comply with the following rules. At least 2 lowercase alphabetic characters, at least 2 uppercase alphabetic characters, at least 3 numeric characters, and alphanumeric characters only. Okay, these are the requirements. A function validate password is needed to check that a given password follows these rules. This function takes a string pass as parameter. Okay, ये हम पहले भी करते हैं कि फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर एक या 2 या 3 वेरिएबल्स होते हैं. These variables are used to give values to the function or procedure with which they are being used, and these variables are called parameters. And it returns a boolean value. Boolean value क्या return करता है? It returns true if it is valid password and false if otherwise. ठीक है? अगर आपका पासवर्ड इन 4 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. As a matter of fact, we will return a variable, boolean variable. Its value will be set as true or false accordingly. बस हमने वो करना है. Important चीज ये है, ये 4 requirements हमने कैसे फुलफिल करना है. Refer to insert for the list of pseudocode functions. Insert या appendix आपको पेपर के साथ मिलता है, जिसपे सारे built-in functions की लिस्ट होती है. Okay. Now the features that are commonly used in these types of questions are array, loop, condition, built-in functions, and functions and procedures. Okay. Built-in functions होते हैं ना जिनको अपने सिर्फ यूज करना है. ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड, जिसको अपने खुद बनाना है. ठीक है, तो मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ इसको हम कैसे करेंगे. लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड. राइटिंग कोड इन टेक्स्ट एडिटर. सबसे पहले आपने एक फंक्शन बनाना है, वैलिडेट पासवर्ड. सो लेट्स लीव अ स्पेस. फंक्शन नेम इज password. It has a parameter or not. Brackets को अपने function name के बाद लगा दिए. It has a parameter name as pass.
इसके अंदर वो पासवर्ड एंटर करेंगे एंड दिस शुड बी अ स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें उसने कहा है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इज स्पेशल कैरेक्टर, तो ये स्ट्रिंग है। एंड व्हाट डज इट रिटर्न? इट रिटर्न्स अ डेटा टाइप व्हिच इज बूलियन। ठीक है, बूलियन रिटर्न करेगा जब हमें खत्म करने का फंक्शन। We have to check it now. One password. So let's see if loop is required or not. हमने एक पासवर्ड हमें दिया गया इसके थ्रू, यहाँ से पासवर्ड स्ट्रिंग, we have to validate it, check it, evaluate it. हमने ये 4 रिक्वायरमेंट्स लिख दी। तो whether we'll use if statement or repeat until or while and while, right? तो आपने चूंकि रेपिटेशन नहीं है, एक ही है, तो हम if यूज कर लेते हैं। At least 2 lowercase alphabetic characters. How do we do that? At least का मतलब है आपके शुरू में जरूरी नहीं कि शुरू में 2 लोअर केस लेटर्स हों, 2 अपर केस का हो। एक तो होता है ना कि फर्स्ट 2 लेटर्स शुड बी अपर केस, देन 2 डिजिट्स एंड देन 3 लोअर केस लेटर्स। फॉर एग्जांपल इस तरह के पास क्वेश्चन दिया होता है, तो ये आपके फर्स्ट, लास्ट, लेफ्ट या राइट के मेंशन नहीं किए हुए। टोटल एटलीस्ट 2 लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब है आपका जो स्ट्रिंग है उसमें से आपने एक एक कैरेक्टर को वैल्यूएट करना है, नॉट द होल स्ट्रिंग एट अ टाइम, क्योंकि होल पूरा स्ट्रिंग तो आपका पास के अंदर है। आप सबको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करेंगे। कितने आपके पास कैरेक्टर्स है, जो इसकी लेंथ है। ठीक है, एक एक को एक्सट्रैक्ट करने का लॉजिक ये होता है कि हम लूप यूज करें, और लूप कितनी दफा चले, जितने इसके अंदर कैरेक्टर्स है। राइट, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। हमारे पास अगर ये कैरेक्टर्स के एल, ये वाले, ये कैरेक्टर्स है। हमें कैसे पता लगेगा इसमें कितने नंबर्स हैं, इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने स्मॉल, कितने कैपिटल्स? हम इनमें से एक एक को एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, हमेशा एक एक करके। ठीक है, उसके लिए ज़ाहिर है लूप लगाएंगे। लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जितने इसमें टोटल कैरेक्टर्स हैं। और टोटल कैरेक्टर्स का कैसे पता लगेगा, हम इस पे लेंथ का फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन को मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, लेंथ, लेंथ ऑफ व्हाट, पास, इसकी लेंथ, ये जो आपको स्ट्रिंग मिले, फॉर एग्जांपल ये पास है, पास की वैल्यू, फॉर एग्जांपल इस पे लेंथ अप्लाई करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब इतने कैरेक्टर्स को हमने बारी बारी एक्सट्रैक्ट करना है। अब इकट्ठा तो नहीं चेक कर सकते ना कि इसमें कितने कैपिटल लेटर्स, कितने स्मॉल हैं, कितने अल्फान्यूमेरिक, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। नाउ लेट्स सी, लेंथ, अब लूप हम चलाएंगे, और लूप और काउंट, हम यूजुअली काउंट यूज करते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं। 1 2, ये लें। ठीक है, कितनी बार चलेगा, एक से लेकर जितने इसमें कैरेक्टर्स हैं। अगर इसमें 10 कैरेक्टर्स हैं तो ये 10 टाइम चलेगा, अगर 9 है तो 9 टाइम्स, 11 है तो 11 टाइम चलेगा। ठीक है, ये जस्टिफाइड है। और जब हमें इसको खत्म करना होगा तो नेक्स्ट या एंड फॉर, आपको पता है एंड फॉर भी यूज होता है, नेक्स्ट भी यूज होता है। अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसका भी देखिए, इसका भी लॉजिक आप एक दफा बन गया तो अक्सर क्वेश्चंस में ये यूज होता है, रिपीट होता है। लेट्स सी, फॉर काउंट 1 2 लेंथ पास। अब हर इसमें से एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट टाइम हमने के, देन एल, देन ओ, एक्सेट्रा आई, ये सारे करेंगे। अब आप एक एक कैसे करेंगे, लेफ्ट का फंक्शन अगर यूज करते हैं तो लेफ्ट एक साइड से लेफ्ट तो ले लेगा, फर्स्ट टाइम के लिए तो ठीक है, बट सेकंड टाइम लेफ्ट नहीं है बल्कि लेफ्ट के साथ वाला कैरेक्टर है, थर्ड टाइम द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट फंक्शन यूज होता है वो मिड का होता है। अगर आपने एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है तो मिड का फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन के बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है ताकि कैरेक्टर करें, वो स्ट्रिंग हमारा पास है। मिड के बाद इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। एक नंबर वो होता है जहां से स्टार्ट हो, हमने 1 से स्टार्ट करना है, और हमें कितने कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, 1, क्योंकि एट अ टाइम हम एक कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, वैल्यूएट करेंगे। राइट, और इसको हम स्टोर किस में करेंगे, कोई वेरिएबल रखें, 1 कैरेक्टर या 1 4, ऐसा नाम रखें।
अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि लूप चलेगा, इट विल रन दिस नंबर ऑफ टाइम्स। फर्स्ट टाइम क्या करेगा, पास पे जाएगा, ये पास है, इसमें 1 से स्टार्ट करेगा और 1 ही काउंट करेगा, ये 1 से स्टार्ट 1 ही काउंट, फाइन ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलेगा, फिर 1 से स्टार्ट करेगा और 1 ही काउंट करेगा, फिर के को ले लेगा, नेक्स्ट टाइम भी के को लगेगा लेगा। हमें तो नेक्स्ट टाइम एल ओ आई यू ये चाहिए। इसका मतलब ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इट विल नॉट ऑलवेज स्टार्ट विद 1। फर्स्ट टाइम इट शुड स्टार्ट विद 1, नेक्स्ट टाइम 2, देन 3 4 इस तरह से। And which variable is here that always has its value incremented? Count value first time 1 है, फिर 2, फिर 3, 4. Count is the most appropriate variable to be used here. Count और ये 1 रहेगा, भैया एक कैरेक्टर लेना ना आपने, 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू 1 है तो के और 1 कैरेक्टर, तो 1 मतलब सिर्फ के को हम पिक करेंगे, एल को नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम काउंट्स वैल्यू विल बिकम 2 क्योंकि सेकंड टाइम लूप चल रहा है, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, 2 इज एल, और कितना काउंट करेंगे, 1 कैरेक्टर, सिर्फ एल को करेगा। थर्ड टाइम काउंट की वैल्यू 3 होगी, तो ये 3 को 3 से स्टार्ट करेगा और 1 इवैल्यूएट करेगा। अब एक एक कैरेक्टर हर दफा लेगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी व्हाट वी वांटेड, तो ये हम इसको इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसमें वो कैरेक्टर आ गया 1 4। ओके, नाउ लेट्स सी एटलीस्ट टू, अब हम रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या, at least 2 lowercase alphabetic characters, at least 2 uppercase letters, at least 3 numeric characters, right? अब हम सबसे पहले इनको एक्सट्रैक्ट करके इनको काउंट करेंगे, ठीक है ना, हम इनको काउंट करेंगे, तो ये एटलीस्ट है। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे, इसका क्या मतलब है, 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, ये सारा, और ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। लास्ट ये मैं बता रहा, ये भी रिक्वायरमेंट है कि देयर आर नो स्पेशल कैरेक्टर्स, या तो नंबर्स हो या अल्फाबेट्स हो, उसके अलावा कोई कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए, ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स आपको पता है, कॉलन, कॉमा, सेमीकोलन, हैश, इक्वल साइन, प्लस माइनस, ये नहीं चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब हम इनको काउंट करेंगे, 2 लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, हमें कैसे पता लगेगा, एक एक को हम चेक करेंगे। पहला कैरेक्टर पहले क्या आएगा, इसको चेक करेंगे। अब हम इफ यूज करें, ठीक है, अपेरेंटली हमें लग रहा है हम इफ यूज करेंगे, एंड लेट्स सी इफ if it requires to use case of, then we can switch to case of statement, ठीक है। पहले इससे करते हैं, if 1 4, ये जो आपका अभी एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ लाइक के, स्मॉल के इन दिस केस जी। अब वो चेक करेंगे कि क्या वो कैपिटल है या नहीं है। पहले हम कैपिटल कर लेते हैं, तो कैपिटल का मतलब है अल्फाबेट्स में ए से जी के दरमियान, कैपिटल ए और जी के दरमियान। इफ 1 4 is greater than or equal to ए, कैपिटल ए, एंड और जी से कम होगा, 1 4 is less than or equal to कैपिटल सी, ठीक है जी। एक तो ये कर लेंगे इसको काउंट, और अगर ये है तो फिर ठीक है, देन क्या करेंगे, इसमें कुछ काउंट कर लेंगे, कैपिटल में काउंट कर लेंगे। हमें एक वेरिएबल चाहिए जो काउंटर लगा देंगे इसको, ठीक है, काउंट कैप्स, ये नाम रख लेते हैं, काउंट कैप्स इज काउंट कैप्स प्लस 1। हम एक काउंटर लगा देंगे कि कितने कैपिटल लेटर्स हैं वो हमारे काउंट होंगे, और एंड पे जब लूप खत्म होगा तो फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या वो रिक्वायर्ड कैपिटल लेटर्स जितने हैं या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो काउंट कैप्स इज काउंट कैप्स प्लस एल से सेकेंड रिक्वायरमेंट, अगर नेक्स्ट टाइम पे लिखने तो वो ज्यादा बेहतर है। अब स्मॉल लेटर्स हमें देखना है, अब इसी को मैं कॉपी करूँ, एल से, एल से 1 4 is
ग्रेटर देन इक्वल टू, अब स्मॉल ए कर ले क्योंकि हम स्मॉल लेटर्स कर रहे हैं, स्मॉल सी। तो इसके ये डिफरेंट वेरिएबल कर लेते हैं, काउंट कैप्स नहीं, काउंट स्मॉल कर ले, ठीक है। या लोअर केस एक्स या लोअर कर ले, लोअर काउंट लोअर केस लेटर्स, ठीक है। फिर वो लोअर में +1 कर देगा तो आपके काउंट होते जाएंगे। एल्स है थर्ड, अब देखिए एक रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट टू लो, एटलीस्ट मींस टू और मोर देन टू, और टू और मोर देन टू, एटलीस्ट 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, कोई भी नंबर है, इफ हम कैसे चेक करेंगे, नंबर्स आर ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो उसी तरह करेंगे कि मैं कॉपी कर, 1 4 हो सकता है, 1 4 आपका कोई नंबर हो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 4 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। अगर ये है तो फिर काउंट नम्स, फिर नंबर को काउंट करेंगे, ये तो नंबर है, काउंट नम, काउंट नम इज काउंट नम प्लस, राइट, तीनों हो गए अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। हाँ, अभी तक तो अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसके अलावा अगर कुछ और है तो फिर वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक इसका मतलब है कैसे पता लगेगा कि इनके अलावा क्या है, हमने देखो रूल आउट कर लिया कि या तो वो कैपिटल लेटर्स हो, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे अगर कैप्स है, एलसिफ अगर स्मॉल भी हैं तो फिर इसमें आ जाएंगे, एलसिफ अगर वो नंबर्स भी हैं तो फिर नंबर इसमें काउंट होंगे। इनमें से किसी में भी अगर 0 होगा या रिक्वायर्ड से कम होगा तो इसका मतलब पासवर्ड आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। इसको हम काउंट करते जाएंगे। एलसिफ लास्ट वाला ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन क्या हो सकती है कि हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ, अब इफ की जरूरत नहीं है, बस एल्स पे हम बाकी काउंट कर लेंगे कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे जो इसमें नहीं आते, किसी में भी नहीं आते, ठीक है। इस एल्स का मतलब है जो इनमें से किसी कैटेगरी में भी फॉल नहीं करते उनको क्या करें, उनको हम स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो उनके लिए हम काउंट अंडरस्कोर स्पेक, स्पेक्स ये कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं, अगर एक भी स्पेशल कैरेक्टर है तो इसका मतलब पासवर्ड इनवैलिड है, फिर हम उसको ट्रू नहीं करेंगे, फॉल्स करेंगे, ठीक है। हमें यही कवर लास्ट रिक्वायरमेंट, काउंट स्पेक्स +1, राइट। एंड इफ करेंगे, ये देखिए पहले इस एक्स को मैं आगे ले जाऊंगा, इस इफ के नीचे एंड इफ, अब आप सारे इफ्स को, ये अब आपका नेस्टेड इफ है ना, तो इनर मोस्ट इफ को पहले खत्म करेंगे एंड इफ, उसके बाद ये वाला थोड़ा सा इसको आगे मूव करना, इंडेंटेशन हो जाए, एक एंड इफ आपका यहाँ पे आ गया, एक एंड इफ इस इफ के नीचे, इस इसकी लाइन इंडेंटेशन का अपने ख्याल रखना, बिल्कुल इसके नीचे, इफ के नीचे एंड इफ, ताकि एग्जामिनर को इसका क्लियरली पता लग जाए, ठीक है। और एक इफ इसके नीचे ये चेक करिए लाइन, यस, हाफ इंच पे, ये भी हाफ इंच पे, एंड खत्म हो गया, ठीक है। ये सारे काउंट, अब हम लूप को भी खत्म कर लेंगे, एक ही काउंट कर लेगा फॉर, ये नेक्स्ट हमारा यहाँ पे खत्म, दैट्स इट। अब लूप के बाहर हमारे पास सारे आबाद हैं, अब हमारे पास टोटल ये लूप चलेगा ना जब इतनी दफा जितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये एक ये चीज काउंट करेगा, कैपिटल लेटर्स कितने हैं, स्मॉल लेटर्स कितने हैं, नंबर्स कितने हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। अब इन सबको फुलफिल करना चाहिए, अगर एक भी चीज फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब है वो वैलिड नहीं, चार चीजें। अब हम इफ यूज करेंगे, टोटल हमारे पास आ गए अब सबके इफ, सबसे पहले काउंट कैप्स, काउंट कैप्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये क्या है ना, एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 2 अपर केस, एटलीस्ट 2 लोअर केस, तो 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए,
ग्रेटर देन 2, देन 10 के बाद पासवर्ड को वैलिड नहीं करेगा। देखो उसने कहा ना कि ट्रू करना है अगर वो वैलिड है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये चारों रिक्वायरमेंट्स के बाद हम करेंगे। अगर कैपिटल लेटर्स 2 से ज्यादा हैं, देन विल चेक whether we have more than 2 small letters or 2 or more than 2 small letters। फिर से चूज करेंगे, if count lower ये नाम रखा था greater than or equal to 2, then अगर ये 2 है तो फिर तीसरी चेक करेंगे, ये भी नेस्टेड इफ कर रहा है। if ये थर्ड हमारा था काउंट नाम, if count नाम is greater than or equal to, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, 3 हमारी, एटलीस्ट 3, इट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, देन तीसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। अब फोर्थ करनी है, एक और नेस्टेड इफ आ जाएगा, इफ अकाउंट स्पेक्स काउंट अंडरस्कोर स्पेक्स, यानी जो स्पेशल कैरेक्टर्स वो तो नहीं होने चाहिए ना, तो अगर वो 0 से ज्यादा है, लॉजिकल है ना, अगर 0 ज्यादा है इट मींस देयर आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स, तो अगर एक भी स्पेशल कैरेक्टर है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इफ अगर ये ए से ज्यादा है, ई से ज्यादा है तो ठीक है, और ये 0 से ज्यादा है या 0 होने चाहिए, इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है देन ये भी ट्रू हो गया। अब ये चारों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं तो हम कहेंगे वैलिड है। अब यहाँ पे इस इफ के बाद देन इट्स वैलिड, और वैलिड के लिए हम क्या करेंगे, हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, लेकिन डायरेक्ट हमने नहीं रिटर्न करना, हम एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल का नाम वैलिड ही रख लें, वैलिड इज ट्रू, वैलिड की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, इन ऑल अदर केसेस इट विल बी फॉल्स, अगर ये सारा कुछ है तो ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा, और ऑलरेडी वो फॉल्स है। अगर ये ट्रू नहीं होता तो फिर हम इसको फॉल्स से वैसे इनिशियलाइज करवा देते हैं पहले। वैलिड इज अ वेरिएबल दैट इज इनिशियलाइज्ड विद फॉल्स। एक तो ये पता लग गया कि ये बूलियन वेरिएबल है, दूसरा ये फॉल्स के साथ इनिशियलाइज हो गया, हम इनिशियलाइज करना जरूरी है, ये बाकी कोड को भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये अभी देखिए 4 रिक्वायरमेंट्स हमारी, इफ काउंट अंडरस्कोर कैप्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देन फिर वो चेक करेगा कि दूसरी, तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, इसलिए मैंने चारों इकट्ठी लिखी। पहली फुलफिल होगी तो दूसरे पे आएगा, ये फुलफिल होगी तो थर्ड पे आएगा, ये होगी तो फिर फोर्थ पे आएगा। अगर फोर्थ भी फुलफिल होती है देन वैलिड विल बिकम ट्रू, अदरवाइज इट विल रिमेन फॉल्स। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया, अब हम इन सबको क्लोज करते हैं, हमें एल्स की जरूरत नहीं है। अब उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था नेस्टेड इफ में पहले इस इफ को क्लोज करेंगे, इनर मोस्ट को, एंड इफ फिर इसके ऊपर वाला इसके बिल्कुल लाइन में से अलाइन करके लिखेंगे, एंड इफ नेक्स्ट, एंड इफ और नेक्स्ट। ठीक है, ये जैसे हमारा लूप स्टार्ट हुआ ये एक्चुअली लूप नहीं है बल्कि नेस्टेड इफ, नेस्टेड जैसे स्टार्ट हुआ तो वो सारा ओवरऑल हमारा एक लूप चल रहा है। ठीक है, ये काम हम लूप से बाहर कर रहे हैं क्योंकि लूप के अंदर सारी कैलकुलेशन होगी, काउंट करता रहा ना कि कितने नंबर्स हैं, कितने लोअर कैरेक्टर्स, कितने अपर कैरेक्टर्स, कितने स्पेशल, ये सारा कुछ हो गया, और ये हमने उन सबको चेक कर लिया। अब ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम फंक्शन खत्म करने से पहले वैलिड की वैल्यू रिटर्न करेंगे। रिटर्न कमांड एक अलग सी आती है, रिटर्न वैलिड की अब वैल्यू यहाँ पे ट्रू या फॉल्स जो भी होगी वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये रिटर्न सेपरेट कमांड है, दिस रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रिटर्न्स कमांड। It shows that the data type which is going to be returned or the data type of the variable which is going to be returned is boolean, और यहाँ पे हम उस डेटा को रिटर्न कर रहे हैं, वैलिड, तो वैलिड बूलियन है, यहाँ वैलिड वेरिएबल का नाम और उधर उसकी डेटा टाइप। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये मैंने सिर्फ ऐसे नोशन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Let's see if there is how many marks, 9 marks. Right, so they require students to apply the correct logic
अब ये लॉजिक तो मैंने यूज किया ना, कोई इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी कर सकता है, केस ऑफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। या इफ में आप कुछ और भी इसमें थोड़ी चेंजेस भी कर सकते हैं, वेरिएबल नेम भी चेंज कर सकते हैं, पैटर्न थोड़ा चेंज कर, बट द आंसर शुड रिमेन सेम, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, मेथड आप कोई भी यूज करें। ऑलराइट, दैट्स फाइन। सेकंड को देखें। log array is a one dimension array containing 500 elements of type string. A procedure log events is required to add data from the array to the end of the existing text file. So a procedure is to do it. अब इसमें टेक्स्ट फाइल आ गई, टेक्स्ट फाइल के कॉन्सेप्ट्स भी हमने रिकॉल करने, एरे नेम हमें दिया हुआ है, प्रोसीजर भी दिया हुआ है, राइट। नाउ दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड दैट दिस एरे इज अ ग्लोबल एरे। अगर ग्लोबल एरे है तो आपको पता है वो प्रोसीजर फंक्शन से बाहर बनता है, राइट। ये सब लिखा हुआ है, दिस इज वन डायमेंशन एरे और उसके इतने एलिमेंट्स। प्रोसीजर लॉग इवेंट्स इज रिक्वायर्ड टू ऐड, अब ये प्रोसीजर हम बनाएंगे जो डेटा को एरे से लेता है और उसको एक टेक्स्ट फाइल में ऐड करते हैं, और टेक्स्ट फाइल के भी एंड में, पहले से टेक्स्ट फाइल बनी है इसमें करेगा। अनयूज्ड एरे को वो ट्रांसफर नहीं करेगा, एरे से टेक्स्ट फाइल में ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। इसका आपने कोड लिखना है एंड इट कैरीज 8 मार्क्स, राइट। सो इसका अपना लॉजिक है, इसको भी करेंगे, डिफरेंट है उससे, इसका लॉजिक डिफरेंट है। एंड फॉर दिस पर्पस we'll do this in the new video. So this video will again be of around 30 minutes. नेक्स्ट 30 मिनट्स की वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। दिस विल आई थिंक हेल्प यू a lot in doing the last preparation before your exam.